This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy. For batch is the Purusharth Crash and Revision course. Chapter number 14A, Oscillations. And you know this is the lecture number 3rd. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. जो हम लोग पहले लास्ट में किए थे उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. Question is here. Two spring constants या two springs of force constant K and 2K are connected to a mass M. बीच में यहाँ पे मास है, ध्यान देना बेटा. As shown below, the frequency of oscillations of the mass is what? पहले तो ये पूछो मेरे से कि सर ये SHM में है, आप कैसे बोल सकते हैं? तो देखो आतिया, मैंने क्या किया, इस मास बॉडी को थोड़ा सा इधर की ओर किया, राइट साइड में किया और छोड़ दिया. तो क्या होगा, वो इस स्प्रिंग की वजह से और उसमें डिप्रेशन होने की वजह से वो क्या होगा, स्प्रिंग इधर चले आएगी और फिर इसी तरह से होता रहेगा और बाद में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अटेंड कर जाएगा. Yes. I can say that when mass M is displaced slightly, restoring force set up in both spring is the same direction. So I can say that total force F is equal to F1 plus F2. Yes or no? Total force F is equal to F1 plus F2 minus kx और उसमें क्या होगा minus 2kx, so become minus 3kx. इसको कंपेयर कर दीजिए माइनस के इफेक्टिव ऑफ x, दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 3k. अब कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए. फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट k इफेक्टिव अपॉन m. सो 1/2 अंडर रूट 3k अपॉन m. सो योर आंसर शुड बी, ठीक है, सी नंबर. क्लियर है? नाउ अ मास ऑफ 2 kg, इसको पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन. A mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of pan and spring is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes as dim. The spring constant of the spring is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of motion so that the mass gets detached from the pan? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसको एम्स ने पूछा था 2007 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था. Yes. देखो मास डिस्चार्ज कब होगा, तो मैं लिख देता हूं. द मास विल गेट डिटैच्ड from the pen when acceleration is greater than equal to g. Yes or no? So omega square into a is greater than equal to g. So a is greater than equal to g upon omega square. Yes or no? Yeah. समझा या नहीं समझा? समझा. Maximum acceleration. Maximum acceleration क्या होगा, या तो g के इक्वल होगा या g से ग्रेटर होगा, तभी वो छोड़ेगा, उसको डिटैच करेगा. ठीक है. एंड यू नो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, m ओमेगा स्क्वायर. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन k अपॉन m. तो gm अपॉन k. यस और नो? सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड A minimum is equal to, I can say gm upon k. So 10 into mass here 2 kg upon spring constant is here 200. 0 cut 1 upon 10 is equal to 0.10 meter. Sorry, centimeter में है, तो आंसर is 10 centimeter. C number. Next question. Let T1 and T2 be the time periods of spring A and B when mass M is suspended from one end of each spring. If both springs are taken in series combination, then the time period is what? ठीक है.
So easy. T1 is equal to 2 pi under root m upon k1, and T2 is equal to 2 pi under root m upon k2. दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में किया, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टाइम पीरियड t is equal to 2 pi under root m upon ks is equal to 2 pi under root m into k1 plus k2 upon k1 into k2. सीरीज का यही होता है, लेकिन आप कह रहे हैं टाइम के बीच रिलेशन निकालिए, तो मैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन k1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन k2, ठीक है. I can say t square is equal to t1 square plus t2 square. Answer C number. Yeah. Next, as shown in the figure below, a simple harmonic motion oscillator having identical 4 springs, ये 4 springs हैं, has time period t is what? देखो, the parallel combination of upper 2 springs is connected in series with the parallel combination of 2 lower springs. Yes or no? ये दोनों सीरीज हो गया, ये और ये सीरीज हो गया, और ये सीरीज हो गया, और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस k, तो 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन 2k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2k, सो इक्वल टू 1 अपॉन k. रेसिप्रोकल कर दीजिए, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. ठीक है, then your answer should be B number. Next question. A horizontal platform with an object placed on it is executing SHM in the vertical direction. The amplitude of oscillation is 3.9 into 10 to 3.9 into 10 to the power minus 3 होना चाहिए, -3. What must be the least period of this oscillation so that the object is not detached from the platform? Just एकदम पहले की तरह ही क्वेश्चन है, डिटैच नहीं होगा तब क्या होगा उस समय में, a max is less than equal to g, omega square a is less than equal to g, 2 pi by t whole square into a is less than equal to g, so t minimum is equal to क्या हो गया, 2 pi under root a upon g. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 pi under root a कितना है, 3.92 into 10 to the power minus 3 अपॉन g की वैल्यू क्या है, 9.8. इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3.92 अपॉन 9.8 into 10 to the 3 root under. So you know t minimum is equal to 0.1256 second. Answer is A number. Now, a simple pendulum has a time period capital T. The pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid whose density is 1/10 of that of the material of the bob. Yeah. उसका जो नॉन विस्कस लिक्विड की जो डेंसिटी है बॉब के डेंसिटी का 1/3 है, 1/10 है. 1/10. Period of the pendulum immersed in the liquid is what? ठीक है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले समझिए अच्छा से. पहले मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिक बताता हूँ, क्या लॉजिक लगाऊं मैं. पहले एयर में टाइम पीरियड देखूंगा मैं, उसके बाद उस मीडियम में देखूंगा, और मीडियम वाले को एयर वाले के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, यू को डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा मुझे दिखेगा मैं वही करूंगा. Okay. Logic is that in air, you know, T is equal to 2 pi under root L by G. Yes or no? 2 pi under root L by G. You know, rho is the density of bob. ठीक है, Yes. तो rho by 10 is the density of viscous and non-viscous liquid. Yes or no? तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, rho naught is equal to rho by 10. Rho naught is equal to rho by 10. Now time period T equal to 2 pi under root L upon 1 minus rho naught by rho into G. Rho naught by rho.
तो 2 Yes, sir. पाई अंडर रूट एल अपॉन, ठीक है, ये है रो बाय 10, ठीक है, तो 9 Yes. बाय 10 इंटू जी, इसको ऊपर लेके चले जाइए, 2 पाई अंडर रूट 10L अपॉन 9G, यही ना? Yes. 2 पाई अंडर रूट L बाय G इंटू अंडर रूट 10 बाय 9 Yes, is sir. equal to under root 10 by 9 capital T. Answer should be D number. Yes, sir. Makes sense. Next question. A ball is suspended by a thread of length L at the point Yes. O on a wall which is inclined to the vertical by an angle is alpha. The thread with the ball is displaced by a small angle beta, माने इधर angle, away from the vertical and also away from the wall. If the ball is released, the period of oscillation of the pendulum when beta is greater than alpha, क्या होगा? देखो, अगर SHM है तो obviously SHM है भाई, तो for a particle in SHM, I can say that theta is equal to theta naught sin omega t. Yes or no? Theta is equal to theta naught sin omega t. And omega is equal to under root G upon L. पहले ही जान चुके हैं हम लोग. Time period T equal to 2 pi under root capital L by G. Here, according to the question, beta is greater than alpha. So time taken by the pendulum to move from B to C and C to B is T1, which is equal to T by 2. Yes or no? हाँ, ये तो according to the question है. According to the question, और half time period होता ही है, तो 1 by 2 into 2 pi under root L upon G. Yes or no? Yes. अब इसी को फिर क्या लिख सकते हैं? 2 cut pi under root L upon G, equation number first. Yes. For a particle, यहां देखे बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा था, और हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? फॉर SHM when अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? बीटा साइन ओमेगा टी. यस और नो? एक मिनट सर, ये वाला पार्ट नहीं समझा. अच्छा, मुझे बताइए, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी होता है या नहीं होता है? होता है. यहाँ पे बीटा एंगल बड़ा है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो है बीटा एंगल बड़ा था अल्फा से. यस. तो अल्फा से जब वो बड़ा था तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था, तो उसी तरह मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओके, आपने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वो एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं उसको. यस सर. ओके. इज इक्वल यू नो 1 अपॉन ओमेगा साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. रुक जाओ, एकदम समझ के. 1 इक्वल टू कैपिटल T by 2, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट G by L, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो अल्फा यहाँ है, तो अल्फा को हटाया, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो 1 अपॉन ओमेगा इंटू साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए. 1 अपॉन ओमेगा दैट इज द अंडर रूट L अपॉन G, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. यस और नो? साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा. अब ये कहां से कहां तक था? T1 टाइम कहां था? B से C तक, ठीक है. फॉर B to C to B. अब क्या करेंगे? B to A to B अगेन बोलेंगे, इसके लिए निकालेंगे. तो मैं क्या लिख सकता हूं? टाइम टेकन ऐसे, और ये पॉइंट क्या था? B, ये पॉइंट था A, ठीक है. टाइम टेकन बाय द पेंडुलम move from B to A and back to B. मतलब पूरा जर्नी नहीं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक. तो T2 इज इक्वल टू आई कैन से ट्वाइस ऑफ T. यही तो इसने बोला था क्वेश्चन में.
हाँ, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी साइन इनवर्स एल्फा अपॉन बीटा। तो ओवरऑल टाइम पीरियड इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 कितना था, पाई अंडर रूट एल बाय जी प्लस हियर इट इज 2 अंडर रूट एल बाय जी साइन इनवर्स एल्फा अपॉन बीटा। root under L by G is common, then you can say that pi plus twice of sine inverse alpha upon beta answer. So root under L by yes, G pi plus 2 sine inverse alpha upon beta, then your answer should be A number. इसको पहले आप लोग क्या कहते हैं, पॉज कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। Motion of an oscillating liquid in a U-tube is what? पहले समझो, U-tube में इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, okay, ठीक है, तो क्या होगा, तो यू नो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई जी, ठीक है। तो ये T जो है ये हाइट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब रो टू द पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें आंसर yes, देखिए कौन सा है, कहता है पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, रॉन्ग, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यस करेक्ट, सी नंबर इज करेक्ट। नाउ एसर्शन एंड रीजन आपको पता ही है, ए तब बोलते हैं जब एसर्शन और रीजन दोनों सही होता है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बी तब बोलते हैं एसर्शन रीजन तो ट्रू होता है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होते। एसर्शन अगर ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी बोलते हैं, और दोनों एसर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है तो डी बोलते हैं। In assertion is here, in SHM the motion is to and fro and periodic. And reason is here, velocity of the particle v equal to omega under root a square minus x square, where x is displacement. yes, देखो दोनों सही है, क्योंकि दोनों SHM सही, क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होती है, तो ए periodic, फर्स्ट वाला assertion हमारा सही है। वेलोसिटी yes sir, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों हाँ, थोड़ी है, हाँ, रीजन वाले रिलेशन में नहीं आता, हाँ, आंसर इज बी नंबर। yes sir, पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन। 1 minute, हाँ, in simple harmonic motion the velocity is maximum when when the acceleration is minimum. Displacement and velocity in simple harmonic motion vary by, differ in phase by pi by 2. पहला वाला भी सही है, क्योंकि हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सीलरेशन मिनिमम होता है, याद है, पोजीशन वैसा होता वेलोसिटी है, यहाँ हाँ, पे मैक्सिमम होती है और वहाँ पे और इस एक्सीलरेशन समय में 0 होता एक्सीलरेशन मिनिमम होता है, है, ठीक है, तो ये yes sir, ही है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है पाई बाय 2 एंगल से चेंज होता है फेज में, ऑब्वियसली करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, डी नंबर इज करेक्ट। ओके, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे इसका, कहाँ कहाँ एक्सप्लेनेशन है दोनों में बताओ, ठीक है। मतलब दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सप्लेनेशन, ओके, हाँ, नेक्स्ट नंबर, the time period of a pendulum on a satellite orbiting the earth is infinity, ठीक है, देख लेते हैं। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जी की वैल्यू वहां क्या होती है, 0, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब सही है ये वाला। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर जी, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों में कुछ भी, आंसर इज बी yes, नंबर। हाँ, नेक्स्ट, ये भी है, water in a U-tube execute SHM, the time period for mercury filled of the same height in the U-tube be greater than that in the case of water, ठीक है, समझिएगा, ये U-tube हमारे पास है, उसमें आपने लिक्विड डाला है पहले वाटर, और बाद में क्या डाला है, सेम हाइट पर क्या डाला है, मरकरी डाला है Hg, और यहाँ वाटर डाला था H2O, ठीक है।
तो सुनना, Yes. तो कह रहा है कि water in a U tube exude SHN, the time period of mercury filled up to the same height in the U tube is greater than that in the case of water. ऐसा थोड़ी है, वाटर ज्यादा Density SHM शो करेगा, तो यहाँ कह रहा है डेंसिटी greater किसका than. ज्यादा है? हाँ, क्या बताओ? डेंसिटी मरकरी का ज्यादा है. हाँ, डेंसिटी डेंसिटी मरकरी का ज्यादा है. हाँ टाइम पीरियड ज्यादा, मरकरी कम लगेगा. हाँ. कम लगेगा, ठीक है, तो इसका Yes. मतलब वो गलत है, assertion is false. Yes. ठीक है, the amplitude of an oscillating pendulum goes on increasing. ना, amplitude of an oscillating pendulum goes on increasing, ऐसा थोड़ी नहीं होता है. नहीं, क्या होता है बताइए? कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड. कांस्टेंट रहता है, या एयर फ्रिक्शन की वजह से डिक्रीज करता है? थोड़ा डिक्रीज कर सकता है. अगर नहीं, अगर हाँ. एयर फ्रिक्शन है तब डिक्रीज करेगा, और नहीं है तो कांस्टेंट हाँ. रहेगा, तो इसका मतलब दोनों गलत हो गया, तो डी नंबर आंसर. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, resonance is a special case of forced vibration in which the nature and frequency of vibration of the body is the same as the impressed frequency and the amplitude of forced vibration is maximum. ठीक है, assertion सही है, assertion सही है. क्योंकि रेजोनेंस जो है वो स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ही तो होता है, इसमें नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज सेम दैट द इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन. तो ए नंबर तो हमें सही लग रहा है, असर्शन तो सही लग रहा है. रीजन देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड पीरियोडिक फोर्स. पहले फिर से समझना, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, ठीक है, with an increase in the frequency of the externally impressed periodic force. तो पहले समझो, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी. हाँ, तो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है? इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स अप्रोचेस टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर. ये आंसर था ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है. असर्शन सही, रीजन फॉल्स, आंसर इज सी नंबर. यस सर. नेक्स्ट पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन. हाँ. The oscillation of a body on a smooth surface horizontal is represented by the equation x is equal to a cos omega t, where x is the displacement at the time and omega is the frequency of oscillation. Which one of the following graph shows the variation a correctly? तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, यू नो v इक्वल टू dx by dt, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी. यस और नो? यस. फिर एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी. ठीक है. यस. तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्टली द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम. ठीक है. हाँ. तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, मतलब इस तरह से होना चाहिए था. ठीक है. हाँ. और एक्सीलरेशन क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, मतलब जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और विद पाई बाय 2, क्योंकि नेगेटिव भी है. ठीक है. यस. तो कैसा होगा इसका? पाई बाय 2 डिक्रीज किया पहले, सबसे पहले तो ये हुआ कॉस है ना, सी होगा, डी होगा ना, डी. सर वो तो साइनसॉइडल ग्राफ है. तो कॉस पर नेगेटिव भी तो है. ठीक है. पाई बाय, अच्छा मैं इसको और कर देता हूँ, रुको. ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. माइनस को अंदर लेके चले गए, तो ये क्या हो गया? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. मीन्स ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो यही वाला हुआ ना, डी नंबर. ठीक है. देखो यहाँ पे था पाई बाय 2, नीचे आ जाना चाहिए, तो यहाँ आ गया जी, माइनस, और बाकी सारा सेम रहेगा. सो आंसर शुड बी डी नंबर. यस और नो? यस. बेवकूफ देखा है आपने? सर तो मैंने आपको पहले बोला था, आपने ये समझा दिया, मैंने भी समझ लिया. तो समझ कैसे गए? तो फाइट करो मेरे से ना. मुझे लगा ये सही होगा. ये लगा क्यों लगता है? यही सब तो दिक्कत है. यही तो पहले मैंने बताया. ओके. मैं तो फिर कौन सा कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें गलत करा दूं. ठीक है. अच्छा. क्योंकि तुम दिमाग लगाओ भाई. पहले ध्यान दे. तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन था तो तुम गलत था, तो तुम बोलते ना कि सर ये एक्सप्लेनेशन आपका गलत है.
Okay. फिर से ध्यान दो, Yes. Sir. मैं एकदम फाइट करता रहूंगा, एकदम ध्यान देते जाना। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ तक क्लियर है? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d2x by dt स्क्वायर, यस और नो? माइनस d2x ओमेगा by स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते थे इसमें? मैं बोल रहा था कि कॉस का ग्राफ, तो मतलब ये तो कॉस का ग्राफ आना चाहिए, तो ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, एंड नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, तो सी आना चाहिए। और एक्चुअल में जानता है मेरा वो भी सी ही बोल रहा था आंसर, जब सॉल्व कर रहे थे सी हो रहा था, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि तुमको समझ में आया नहीं। पाई बाय 2 डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो मैंने किया भी नहीं था तभी, तो तुमको बोलना चाहिए था ना कि नेगेटिव कीजिए, पहले नेगेटिव कीजिए और यस, फिर अच्छा, ओके। कॉस का ग्राफ है, लीजिए नेगेटिव करके कॉस का ग्राफ, यही होगा। तो आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, सी आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ओके। ऐसा मैंने क्यों इस क्वेश्चन में कराया, तो बहुत बच्चे को देखा है मैंने, वो डी कभी बोल देंगे, कभी उसको बोल देंगे नहीं सर इसका जो है नेगेटिव है, तो सर बी नंबर हो जाएगा। डी और बी में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके। नेक्स्ट, यस। a body is executing simple harmonic motion when the displacement from the mean position are 4 centimeter and 5 centimeter. The corresponding velocities of the body are 10 centimeter per second and 8 centimeter per second. Then the time period of the body is what? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले बताइए, जब इस तरह के क्वेश्चंस थे तो उसमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यही कराया था मैंने। u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। x2 is here 5, so you know 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये है 8 और ये है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बिकम 9, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बिकम 6 स्क्वायर 36, ठीक है। यू नो 2 पाई अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 से इसको कट कीजिए, 3 3 3 कट, आंसर बिकम पाई सेकेंड। ऑप्शन इज सी नंबर, यस और नो? पाई सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time period of a mass suspended from a spring is t. If the spring is cut into the 4 equal parts and same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be what? T is equal to 2 pi under root m by k होता है या नहीं होता है? और k is equal to क्या होता है? f by x। जब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तब स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 4k। f upon x by 4 is equal to 4 into f upon x is equal to 4k, सही बोला आपने। टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, क्लियर है? इज इक्वल टू आंसर, तो आंसर शुड बी t नंबर, t होना चाहिए, मतलब b होना चाहिए, क्लियर है? यस। बेवकूफ देखा है सर, तो क्या है? अच्छा, 2 कटेगा नहीं बाहर आके? मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, अरे हाँ, 2 पाई तो वो t/2। नहीं, नहीं, मैं 2t ऐसे ही हो। करता हूँ, जो बच्चा ध्यान नहीं देता है ना, मैं तो इसी तरह से कराता हूँ। नहीं, मुझे लगा वो 2 कट हो जाएगा क्यों तो लगता इक्वल है आ तुमको? जाएगा, ऐसा बट नहीं लगता था। क्यों है? वो लगता क्यों गलत है? गलत देखा ना, मैं तो केयरलेसली करूंगा ही, देखा। करूंगा ही गलत, ठीक है। तुम नहीं ध्यान हाँ, तो दोगे तो 2 मैं क्या टाइम्स है। करूंगा? अरे 2 पाई अंडर रूट m बाय k नहीं, k डैश होना चाहिए था ना। हाँ, तो वो तो लिया, बट हाँ मैंने तो वो क्यों, तो कैंसलिंग बोला कर। क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, फाइट क्यों नहीं किया? तो नहीं, मैंने खुद ही 2 गलत देखा पाई इंटू इसलिए। 1 अंडर 1 बाय 2 अंडर रूट m हाँ। बाय k, ये 2 2 कट हो गया, पाई अंडर रूट m बाय k, ठीक है। अब हमें क्या है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये कैपिटल T अपॉन 2 होना चाहिए। ऑप्शन शुड बी सी नंबर, यस और नो? यस सर, अभी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ध्यान दोगे मैं सारा गलत कराऊंगा सॉल्व, अब देख लो। नहीं ध्यान दो, नहीं ध्यान दो, क्या दिक्कत है? मैं जो मन सो कराऊंगा, देखना मैं अभी इसमें हिस्ट्री शाहजहां पढ़ाने लगूंगा अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो। If the length of a simple pendulum is increased by 2%, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी 3-4 दिन पहले कॉलेज में मेरी क्लास थी, देख रहे थे, लॉकडाउन से सारे बच्चे आए थे, थोड़ा मोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा मोड़ा मजाक में चल रहा था बच्चे सब,
मैंने सबको बोला कि हाँ। सब दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब सीरियस क्लास ले लो अच्छे से, ठीक है। क्लास तो चल रही थी, मैंने क्या कुछ बच्चे मजे ले रहे थे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ ऐसा चल रहा था। मैंने कहा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप लोग। नहीं ध्यान दिया। एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कहीं पे प्लस माइनस गड़बड़ कर दिया, कहीं ओमेगा की जगह मैंने टी लिख दिया था, कहीं एक्स की जगह वो क्या कहते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा रहा था मैं। इसके बाद ओ। उसमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आई डैश प्लस 4 की अपनी मर्जी से जो मन सो कर रहा था मैं, और ऐसे जगह कर रहा था जिससे पता ना चले। हाँ। जब करने लगे तो 10-12 स्टेप के बाद उन लोगों को लगने लगा कि भाई कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा। तो जो यस। ये सब ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, अब वो लोगों का दिमाग और खराब हो गया कि अब कैसे क्या करेंगे। 20 मिनट क्लास लिया मैंने कहा बेटा ऐसा है, ये क्वेश्चन कर दिया मैंने, अब जो जो करना है प्रोसेस यही है, अब आप लोग सॉल्व करके आइए। अब क्या था, अब मैं मजे ले रहा था, वो लोग परेशान हो रहे थे। फिर घर पे बैठ के रात में 2 घंटे 3 घंटे बच्चे ने मेहनत किया, तब लास्ट में सबों के सही आए। बोला सर, तो कहने का मतलब जानते क्यों, एक्चुअल में अगर सिर्फ ना देखते रहोगे, सिर्फ विजुअल से काम नहीं चलेगा। बहुत बच्चे के साथ ये देखता हूँ, वीडियो देखता है, क्वेश्चन देखता रहेगा, सॉल्व हो रहा है। अरे भाई अपना ब्रेन अप्लाई करो, लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बार बार मैं कहता हूँ, जब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, यस सर। if the length of a simple pendulum is increased by 2%, then the time period will be what? खुद पता लग रहा है। इंक्रीजेज हाँ वो तो एरर फॉर्मूला। क्वेश्चन, यही कुछ ऐसा एरर वाला क्वेश्चन है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट एल, ठीक है। यस सर। परसेंटेज इंक्रीज जब निकालना हो तो क्या करते हैं, डेल्टा टी बाई टी इंटू 500 इज इक्वल टू रूट अंडर एल है तो 500 सर 500 क्यों? अच्छा कितना होता है? 100 ना। अच्छा चलो 100 होता है तो लिख देते हैं भाई, यू नो 100 परसेंटेज है। तो 1/2 इंटू, क्योंकि रूट अंडर है इसीलिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है? यस। यू नो हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल कितना दे रखा है 2%, देन यू नो हाफ इंटू 2%, 2 से इसको कट कर दीजिए, बिकम 4%। क्लियर है सर 1%। 1%। चलिए, तो आंसर इज 1% यार। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट? ये इंक्रीजेस बाय 1%। इंक्रीजेज बाय 1%, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two masses Ma and Mb are hung from 2 strings of length La and Lb respectively, ठीक है। ऐसा है, इसका लेंथ La है, इसका मास जो है वो Ma है, इसका जो है Lb मास इज Mb। They are executing SHM with frequency relation Fa is equal to twice of Fb, ठीक है। Then the relation is what? La is equal to Lb by 4 does not depend on mass, La equal to 4 Lb does not depend on mass। माना एल और एम के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है, मैंने एल एल बी निकाला, फिर इस वाले पार्ट में है कि एम एम बी में भी रिलेशन निकालना है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं पहले ये वाले पार्ट का यूज करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के टर्म में लिख देंगे, या एल और जी के टर्म में लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो एफ ए इक्वल टू 2 इंटू एफ बी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, तो एल ए हो गया यहाँ पे, twice of 1/2 pi under root g upon LB, yes or no? yes sir। 1/2 pi 1/2 pi is cut, ठीक है सर एक हाँ। अब दोनों हाँ, साइड ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए, तो g अपॉन LA इज इक्वल टू 4 इंटू जी अपॉन LB, जी यस। इज कट, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो LA इज इक्वल टू LB by 4, ठीक तो है। आपने उधर 2 लिखा है या 4 लिखा है? कहाँ पे 4 ना। 2 का स्क्वायर किया मैंने, 4 लिखा। हाँ हाँ। नहीं हाँ वो ठीक है या। तो एल अब आप ध्यान दोगे मुझे पता है तो एल ए इज इक्वल टू एल बी बाय 4, ये तो ठीक है। मास का क्या रिलेशन, तो मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। जिस किसी को इजी वे में, आंसर इज ए नंबर, जिस किसी को बिना मेहनत किए सब कुछ दे दोगे ना, वो उसका वैल्यू नहीं समझेगा। उसको मेहनत कराओ फिर दो तो देखो बहुत वैल्यू है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an oscillator completes 100 oscillations, its amplitude reduces to the 1/3 of its initial value। बहुत अच्छे। What will be its amplitude when it completes 200 oscillations? ये बिल्कुल डैम्पिंग अनडैम्पिंग का क्वेश्चन है, जरा गौर करना। हाँ ऐसे क्वेश्चंस में अटकता था। यस सर।
और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं। पूछो तुम, मैं देखो जब मैं सॉल्व करता था तो क्या होता था मेरे साथ वो बताता हूँ। मैं देखता था कि 100 ऑसिलेशंस है तो मैंने n की वैल्यू 100 लिख दी, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख देता था मैं। फिर हाँ। कहता था एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस था 1/3, मैंने a/3 a डैश इज इक्वल टू a/3। फिर नया मैं करता था n डैश इज इक्वल टू 200। यस, तो नया है वो n डैश। हाँ, नया करता, आंसर इस तरह से भी आ जाएगा ओके। लेकिन वो लेंदी होगा। हम्म। तो इजी तरीका क्या है, देखिए इसके लिए तो टॉपिक ही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता था, a नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बीटी। माइनस टी, हाँ वैसा वही था। फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन ओके। समझिएगा, इस क्वेश्चन पे मैं स्टार बना देता हूँ, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, ठीक है, तो फिर आप ये मेरे से पूछ सकते हो आपको कैसे पता डैम्प्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ 100 ऑसिलेशंस है, बाद में 200 ऑसिलेशंस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, तो डैम्प्ड ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो यू नो इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये सब क्वेश्चन पहचानने का तरीका है बेटा, ठीक है। एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ a नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बीटी, मैंने ऐसा ही एज इट इज लिखा था पेपर में। a नॉट क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यू नो दिस इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। b क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट्स, यू नो कांस्टेंट्स मैंने गलती से बोल दिया, कांस्टेंट बोलना चाहिए। यही मैं जब बड़े क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब हायर स्टडी में जब करेंगे तो मैं वहां पे डैम्पिंग कांस्टेंट्स बोलूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसीलिए। अच्छा। एट t इज इक्वल टू यू नो 100 कैपिटल T, और a क्या है, a नॉट बाय 3। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a नॉट बाय टी 3 इज इज इक्वल इक्वल टू टू, हाँ बोलो क्या, टी इज इक्वल टू 100 टी कैसे अच्छा कर क्योंकि लिया? 100 ऑसिलेशंस बोला ना, तो 100 हाँ, टाइम उसमें लगा इसीलिए अच्छा, तो 100 टाइम 100 इंटू पीरियड्स। कैपिटल T। हाँ। अब इसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a नॉट बाय 3 इज इक्वल टू a नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस b इंटू 100t। a नॉट कट, then you know e to the power minus 100 bt is equal to 1/3। इसको इक्वेशन 1 रख देते हैं नेम। now at t is equal to 200t, then I can say that a is equal to a naught into e to the power minus b into 200t। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, a naught into e to the power minus 100 bt का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ, कैसा? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 या बाय हेल्पिंग इक्वेशन 1 ऐसा लिख देते हैं, बाय हेल्पिंग या बाय यूजिंग इक्वेशन 1 ऐसा लिखते हैं, या वर्ड प्रॉपर नहीं आ रहा था, ये लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 आई कैन से दैट a इज इक्वल टू a नॉट इंटू 1/3 होल स्क्वायर, तो बिकम a नॉट बाय 9। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर 1/9 हो जाता है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को Yes, जरूर sir. घर में एकदम रोक के अच्छा से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। Yes, sir. And next. Two तो simple मैं पढ़ pendulum लूंगा। of lengths 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction at the same time. They will again be in the phase, इस वर्ड पे गौर करना, when the pendulum of shorter length has completed how many oscillations। कितना इजी क्वेश्चन है। T1 by T2 इस क्या होता है, अंडर रूट L1 by L2, यस और नो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अंडर रूट 5/20। एकदम इस सब में शॉर्ट मेथड हमेशा चूज करना बेटा, और ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये इसी क्वेश्चन को बच्चे 5 सेंटीमीटर पुट करके बड़ा इक्वेशन बनाते हैं, फिर पुट करते कंपेयर करते हैं या रेशियो निकालते हैं, टाइम तुम्हारा कंज्यूम हो जाएगा उसमें। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कोशिश कीजिए शॉर्ट मेथड चूज करने का, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है।
बत्ती जलनी चाहिए ब्रेन में बस। तो यू नो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। तो कहने का मतलब क्या हो गया इसमें कि T2 इज इक्वल टू 2 into T1। तो when longer the pendulum completes the 2 oscillations, the shorter pendulum complete the 1 oscillations, and both are again in the same phase। तो पूछा है कि शॉर्टर का क्या आंसर होगा, बी नंबर। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 2 देखते हैं तो बोलते हैं सर ए नंबर, लेकिन एक्चुअली बट वो शॉर्टर के लिए, वो तो लॉन्गर के लिए था। नेक्स्ट पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन। Two simple pendulums of time periods 2 seconds and 2.1 seconds are made to vibrate simultaneously. They are in phase initially. After how many vibrations they will be again in same phase? ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी वाइब्रेशंस दे विल बी अगेन इन द सेम फेज। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो दो पेंडुलम है, दोनों सेम फेज में है, और V+1 एंड V ऑसिलेशंस दिया हुआ है जिसमें सेम फेज आता है। ठीक है, यही कह रहा है ना। ऑसिलेशंस, हाँ 2.1 और 2 मतलब नहीं क्या, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2.0 है 2.1 है, तो इसको मैं V एंड V+1 नहीं लिख सकता मैं क्या? V plus 0.1 नहीं होगा। अच्छा पहले समझो क्वेश्चन को, मैंने कैसे कहा। सेम फेज में है तो ये एक अगर मान लो X में वाइब्रेट ऑसिलेशन में कंप्लीट करता है तो दूसरा वो X+1 में कंप्लीट करेगा। सेम फेज में है, अच्छा तो हाँ चलो ऐसा मैं लिख देता हूँ, न्यू ऑसिलेशंस एंड न्यू+1 ऑसिलेशन। अब ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आई मीन न्यू प्लस वन ऑसिलेशंस के नंबर लिखे, हाँ यस सर। अब ठीक है, एक्स वाई छोड़ दिया मैंने, वी छोड़ दिया। अब मुझे बताओ न्यू इंटू T1 इज इक्वल टू न्यू इंटू T2, दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। into T1 and new into T2, हाँ दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट। तो न्यू प्लस 1 इंटू ट्वाइस इज इक्वल टू न्यू इंटू 2.1। तो 2 न्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 2.1 इंटू न्यू। तो 2.1 न्यू माइनस 2 न्यू इज इक्वल टू 2। तो 0.1 न्यू इज इक्वल टू 2। तो न्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.1, आंसर इज 20। हाँ ठीक है, तो 20 है पर यहाँ तो आंसर 21 दिया हुआ है, वो न्यू प्लस 1, तो न्यू प्लस 1 वाला। The total pendulum should be complete 21 and 20 oscillations for being the same phase. Then your answer should be A number. Okay, yes sir. Next question. Two SHMs with same amplitude and time period when acting together in perpendicular directions with a phase difference of pi/2 give rise to। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर कह रहा है, तो a sin ओमेगा t प्लस pi/2, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, a cos ओमेगा t। यस और नो? यस। तो फिर क्या पूछा जा रहा है कि टू SHMs फेज डिफरेंस गिव राइज टू द मोशन विच टाइप, मतलब स्ट्रेट मोशन है या इलेप्टिकल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, कैसा है। तो देखो ये है x, ये है y, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो x अपॉन y इक्वल टू a का tan ओमेगा t। यस और नो? तो इज इक्वल टू आई कैन से दैट x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। याद है? हाँ ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये x है ये y है। ठीक है, तो अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x। ठीक है, वो कट कर देते हैं, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू y, देन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। किसका इक्वेशन होता है ये तो सर्कल का। तो सर्कुलर मोशन इज हियर, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ simple harmonic motion of equal period at right angle to each other and what with the phase difference of pi results in the displacement of the particle along which, मतलब इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इक्वल पीरियड्स एट द राइट एंगल टू ईच अदर, यही क्वेश्चन बोल रहा है।
तो मैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a sin ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस b sin ओमेगा टी. यस और नो? यस, माइनस. हाँ. अब ऐसा करते हैं, डिवाइड करने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि a और b दोनों अलग अलग है. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड y अपॉन b इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी. दोनों को कंपेयर कर लीजिए, x अपॉन a इज इक्वल टू माइनस y अपॉन b और y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इंटू एक्स. तो ये क्या हो गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. अच्छा, ठीक है. देन आंसर शुड बी सी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. if x is equal to r sin omega t plus r omega t and y is equal to r cos omega t plus r, where omega and r are constants, what are the x and y components of acceleration when y is minimum? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समझो, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, r cos ओमेगा t प्लस r. ठीक है, और क्या कह रहे हैं, मिनिमम है. ठीक है, तो फॉर y टू बी मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे. तो dy बाय dt इज इक्वल टू कॉस का साइन माइनस साइन और ओमेगा, तो माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 0. देन आई कैन से दैट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0. मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट बता ही दिया है मैंने आपको. ओमेगा टी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, चलता रहेगा. Yes sir. फिर डिफरेंशिएट कीजिए, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो यू नो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई. ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि 0 पाई 2 पाई सब ले सकते हैं. अगर पाई डालते हैं तब पॉजिटिव आता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, पाई डालेंगे तो पॉजिटिव. हाँ पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव आएगा तभी तो y मिनिमम होगा. तो आई कैन से दैट हेंस y इज मिनिमम एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई. तो ax इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन पाई. साइन पाई की वैल्यू 0. उसी तरह ए वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस पाई. cos pi is -1, so answer is minus minus plus omega square r. Then your answer should be, कह रहा है ax 0 है और ay r ओमेगा स्क्वायर है, तो a नंबर इज आंसर. ठीक है, ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r. क्लियर है? यस सर. If the mass capital M in the figure is slightly displaced and then released, मैंने ऐसे थोड़ा सा हटाया और फिर छोड़ दिया. The frequency of the motion of the block is what? पहली बात देखो, ये K1 और K2 जो है ये सीरीज में है और फिर ये K3 के साथ पैरेलल में है, यही ना. तो टाइम पीरियड क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 K1 प्लस K2 प्लस K3. यस और नो? हाँ, वो पैरेलल में है तो वो ऐड हो जाएगा. यस. अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, M इंटू K1 प्लस K2 अपॉन, ठीक है, या M इंटू K1 प्लस K2, K1 K2 प्लस K3 इंटू K1 प्लस K2. यस और नो? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना. हाँ, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K1 K2 प्लस K3 K1 प्लस K3 K2 अपॉन M इंटू K1 प्लस K2. ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है?
सी नंबर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, लगा। the period of a simple pendulum measured inside a stationary lift is found to be t। ठीक है, लिफ्ट रुकी हुई है, वहां पे टाइम पीरियड कैपिटल टी है। if the lift starts accelerating upward with an acceleration is of g/3, then the time period of the pendulum is what? देखो इनसाइड द लिफ्ट क्या था, वो जब स्टेशनरी लिफ्ट था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, स्टेशनरी लिफ्ट, स्टेशनरी, रुक जाओ, स्टेशनरी लिफ्ट। ठीक है, अब जब अपवर्ड हो रहा है मूव, तब क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, तो अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस जी बाई 3, यही ना कह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, 3l अपॉन 4g, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई कट गया, एल कट गया, तो अंडर रूट यू नो g अपॉन 4g अपॉन 3, मतलब 3g अपॉन 4 जी कट, रूट 3/2, so t dash is equal to root 3/2 into t. Answer is C number. Next question. The resultant of two rectangular simple harmonic motions of the same frequency and unequal amplitude but differing in the phase by pi/2. एकदम पहले की तरह ही का क्वेश्चन है ये। But unequal I1 is amplitude. equal to A1 sin omega t. Then you can say that the sin omega t is equal to Y1 upon A1. Y2 क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है ना, तो A2 sin ओमेगा t प्लस pi/2 से डिफर कर रहा है, तो pi/2 इज इक्वल टू A2 cos ओमेगा t, इससे cos ओमेगा t निकाल लीजिए, cos ओमेगा t इज इक्वल टू Y2/A2। अब दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू Y1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यस और नो? Yes. तो I can say that y1 square upon a1 square plus y2 square upon a2 square equal to sin square omega t plus cos square omega t 1 होता है। ये किसका इक्वेशन है? ये तो एलिप्टिकल का। इक्वेशन का एलिप्स, तो आंसर शुड बी एलिप्टिकल, सी नंबर। A simple pendulum is vibrating in an evacuated chamber. ठीक है, it will oscillates with, देखो अगर वैक्यूम है, ये इवैक्यूएटेड चेंबर है, अगर ये वैक्यूम में है, there is no loss of energy due to the recessive forces, तो amplitude remains constant, A number। Two simple pendulum whose length are 100 centimeter and 120 centimeter are suspended side by side. Their bobs are pulled together and then released. After how many minimum oscillations of the longer pendulum will the two be in same phase? ठीक है, इस बार longer का निकालना है। Same question is here. T is directly proportional to the root L. दोनों का फेज सेम है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू T1 वही वाला, या n इंटू T1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू T2, या न्यू जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है, तो n इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ L2, तो n इंटू रूट अंडर 121 इज इक्वल टू n plus 1 into under root of 100, n into 11 is equal to n plus 1 into 10, yes or no? So 11 minus 10 n is equal to 10, so n is equal to 10, your answer should be B number। ठीक है, next question. 4 pendulums A, B, C and D are hanged from the same elastic support as shown in the figure. A and C are of the same length while B is smaller than A and D is larger than A. Figure में दिख ही रहा है। If A is the given displacement, then at a steady state, ठीक है, क्या होगा? D will vibrate with maximum amplitude ना, इसका तो लेंथ बहुत ज्यादा है। C will vibrate with the
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हाँ ये वाला सही है। क्यों? क्यों? सी के का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा क्योंकि ए और सी में दोनों की क्या कहते हैं, लेंथ सेम है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, रेजोनेट करेगा वो। ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स लार्ज। ऑप्शन सही, यही तो सही है, यही तो होता है रेजोनेंस में, एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश and this unit is also finished. This exercise chapter is again also finished. अब हम लोग कमिंग क्लास में waves डिस्कस करेंगे. Till then, bye as well as best of luck.